5 कॉलेज फ्रेंड्स, 5 को फाउंडर्स, एक ग्लैम्पिंग एम्पायर। इसमें से हमारे हाथ में एक को फाउंडर लग गया है। उनका नाम है मेघ दोषी। हाय मेघ। Hi. विशलेश। पुष्पेंद्र। Hi, Pushpendra. How are you guys? आई एम गुड, आई एम गुड। दिस इज सो ब्यूटीफुल। I hope you had a good drive coming around. या प्रीटी मच। And thank you for your time for our podcast show. And because you guys are so motivational for others, because कॉलेज के बाद बहुत सारे लोग सेपरेट हो जाते हैं। बहुत सारी जर्नियाँ होती हैं, सबकी अपने अपने पाथ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको भी पता चला कि आप लोग अलग हुए थे, फिर एक डेकेड के बाद साथ में मिले और एक एम्पायर खड़ा किया। 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ आपके रिसोर्ट्स स्टार्ट किए। तो वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू योर जर्नी फ्रॉम योर बर्थ प्लेस टू कॉलेज, देन 5 दोस्त कैसे मिले और ये ज़ीरो से एक बूटस्ट्रैप 5 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। Thank you. Firstly, thank you so much for your kind words. What you are telling is absolutely true. हम लोग 5 friends हैं. So everyone, 5 of us are born and brought up in Mumbai. We met together in our college times. So we completed our graduation in the same year, all us 5 friends. We were in the same college. Commerce सबने pursue किया. After commerce, so inside college also we were a very good bunch of people. We 5 used to stick together. College के voting, election, committees में we were very active. तो तभी से हम लोग का bonding बहुत अच्छा था. Post college, everyone had priorities. सबको कुछ करना है. There was an itch to do something in life. So one of my friend pursued hotel management in UK. Okay. One went to Hubli. One is pursued LLB. He's a lawyer. Me, I pursued marketing, and one of my other friends pursued MBA in finance. 5 different brain. एक सवाल आता है, इसमें से बैक बेंचर्स कौन थे? पांचों. To be honest, क्लासरूम में जब भी बैठे हैं तभी बैक में बैठे हैं, बाकी बैठना ही बहुत कम हुआ है. Because we were always busy with some or the other cultural activity. Another example of back benchers successful. हाँ, but teacher's favorite. Teachers favorite. Yes, yes. हम लोग का एक भी assignment जो ये stigma या not probably a stigma, but this thought of backbenchers not being obedient or sincere is false. We've done both. Balance हमने बहुत अच्छे से करा है. Okay. Where we were very good in studies also. Average मतलब very good बोलेगा तो फिर rankers नहीं है. But below average नहीं थे. We were above average in studies also, and cultural सब में we were better than average. कोई टीचर या प्रोफेसर मिले आपको आपके प्रॉपर्टी में? नहीं, हाँ, so हम लोग ने कॉलेज के काफ़ी प्रोफेसर्स को इनवाइट किया है. They also call us. What did they say? And they're very happy. कुछ तो फायदा हो गया लेक्चर बंक करके। So they're very happy looking at us. कैसे we were active during college times and we are still doing the same. Ideally वो कैसा रहता है? I don't know if you're going to keep this in the podcast. We Did this? इसका नाम तो बताओ यार। अरे आर्यपोदार. Okay. So we were all in आर्यपोदार से हम लोग ने graduation complete किया. Which year? 2011. 2011. Yes, 2011 में we completed our BCom, Bachelor in Commerce, and then we went in separate lines, different interest में pursue करने को. Okay. हाँ, so हम लोग वापस आए together after 5 years का break. So we used to meet once every year, मतलब सब लोग मिल नहीं सकते थे every day, every time, every month. तो एक प्लान बनाया था कि हम 5 साल में एक बार तो मिलेंगे. Reunion करेंगे. हाँ, मतलब we 5 should stick together. Okay. So we abided by that rule, and one fine day there was this idea of starting something like this. किसके दिमाग में आया वो पांचों में से? So I'll tell you the names of the other partners that I have. Rohit, MBA in finance. Pratik, the lawyer. Pradeep, hotel management. Abhishek, MBA in marketing. Wow. So हम लोग ने इन लोग 4 गए थे नॉर्थ में ट्रिप के लिए. When they came back, they were like कि यार वहाँ पे ना एक कल्चर है which is camping. कि you go out, you stay in nature,
you sleep inside a tent, but the experience that you get being out, और ये सब hills में ये सब possible है, north में सभी जगह पे है. Correct. अभी तो काफ़ी कमर्शलाइज हो गया है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, 13, 14, 15 के इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. नॉट एवरीवन एंजॉयड इट, बट पीपल हु डिड दे ऑलवेज वेंट फॉर मोर. सो दैट इज़ व्हेन वी अंडरस्टूड कि एक गैप है मार्केट में, वेयर इन सिटीज़, पुणे, मुंबई, कोई भी सिटी ले लो, अर्बनाइजेशन जब हो गया है तो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, फ्राइडे को पार्टी करने का, सैटरडे को पार्टी करने का, संडे को टेंशन लेने का, मंडे से काम पे जाना है. सो दिस इज व्हाट वी वर आल्सो फॉलोइंग. क्या हो रहा है? उसको जाना ही नहीं है. वो बोल रहा है तू चुपचाप बैठ. होंदे कोई कुछ नहीं ठीक दिखेगा. है. हेलो, आवाज तो है. इन लोग 5 जन, इमेजिन इन लोग 5 जन होने वाले थे. अपने पास माइक 4 है, नहीं अपने पास माइक 5 है और 5 जन इन लोग होने वाले थे और अपन और 2 प्लस. फिर आपको इंटरव्यू चालू करना पड़ता. We were not even equipped. We were not even equipped to shoot you guys. हम 5 होते तो आपको बहुत अलग फुटेज मिलता है, बहुत अलग स्टोरीज आती, एपिसोड ही कुछ अलग बनता. So what we did is they realized they came back. I did not go to this trip. So when they came back they told me that यार मैं ऐसा कुछ तो सीन बहुत सही है यहाँ पे. हम लोग यार फ्राइडे तक घिसते हैं, फ्राइडे नाइट पार्टी करते हैं, सैटरडे नाइट पार्टी करते हैं, संडे को बोलते हैं कल के काम पे जाने का. And there you actually get indulged. जो break चाहिए ना, that break happens. You give your body rest. You give them new experiences. So your mind also starts refreshing and reloading, and it's very good. It's a reset kind of a button. And when they came back, they discussed this among themselves कि ऐसा कुछ हमें plains में चालू करना चाहिए. Something for people in Mumbai जो सब corporate काम कर रहे हैं Monday to Friday. And the same routine. So how do we break this routine and get something better, which is this concept of going out in the nature. वो घर के 4 दीवारी से निकल के होटल के 4 दीवारी में जाना ही है तो फिर 4 दीवारी के अंदर ही है. So this is where this concept came in about glamping, which is giving ready-made tents pitch करके, not pota loose but proper loose, giving good food, blankets, adding to that experience is live music. Which company you have started working first? For which was your first job? My first job was I was a marketing executive in Mitashi. Oh wow, it's a good Mitashi brand. Edutainment. Yeah. So I got a good break. I had to interview for it twice, but good. I did go to the second time. I got a good break. By leaving Mitashi, I had, in my opinion, I had learned a lot. There was quite a lot to learn, but then I got an opportunity to join another company, ad agency. So the clientele over there was very attractive, and that is why I shifted. Okay. हाँ. पर इतना अच्छा चल रहा था, हिम्मत कैसे हुआ टू टेक दिस रिस्क? So हमने बहुत कैलकुलेटिव रिस्क उठाया. Where I used to work Monday to Friday, सैटरडे संडे मूनस्टोन हैमॉक का डेडिकेट करते थे. इनिशियल फॉर्मेट हमारा सिर्फ सैटरडे संडे था. So what was your first place you have started? करजत. Karjat. And this property you rented out. Yes, it is still leased. Okay. हाँ. What was the first rental property which was in Karjat? What was the rent? अभी रेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बिन 10 years. तभी हम लोग ने एक एडजस्टमेंट, बिकॉज वी नो द लैंडलॉर्ड एट करजत. Okay. So we had a Because very Karjat nice- always is a holiday place, weekend place Right, for everyone, or it is very high property rate there. See, 10 years ago we were very naive. Plus we were 10 years younger than we are right now. So a lot of people supported us. The landlord over there, who is also a college senior. So he also supported us कि भाई तुम लोग आओ, चालू करो, it's okay, we will manage the commercials. पहले एक बार successfully तुम लोग देख लो क्या करना है, कैसे करना है. So we started this in first season in 2016 in March. That is, we did glamping from Saturday to Sunday. That's it. Monday to Friday absent. मतलब there नामो निशान नहीं है मूनस्टोन हैमॉक का.
बट फ्राइडे सैटरडे पूरा सेटअप हो जाता है, एवरीथिंग इज देयर, द टिकट्स गेट सोल्ड एंड एवरीवन देन कम्स एंड इट बिकेम अ वेरी नाइस प्लेस टू और लाइक माइंडेड पीपल टू कम डाउन. आई मीन वो तो टेंट्स वेंट्स भी गायब हो जाते सब. हाँ हाँ, हम लोग रेंट करते थे सारे टेंट्स भी. कोई ढूंढने आ जाएगा मंडे तो पूरा साफ. भाई कोई भूल गया, मैं भूल गया कुछ, मेरा गॉगल भूल गया, अरे गायब. गुजराती भाई. सो इन द इनिशियल स्टेज आई टेल यू, फ्राइडे जॉब से निकलते थे, छूटते थे. द जॉब यूज्ड टू सी, आइडियली मुंबई में कोई भी जॉब कर रहा है तो पता है कि टाइमिंग वॉज टिल 6, पर सब लोग 7-8 बजे तक तो करते ही है. हाँ. और फिर डायरेक्ट जाते हैं पार्टी करने. और फिर रात को घर लेट पहुंचते हैं. तो तभी ऐसा स्केड्यूल हो गया था हम लोग पाँचों का कि फ्राइडे को 7-8 बजे कॉल पे जाना है, डिस्कस करना है क्या नहीं. सैटरडे मॉर्निंग एक बंदा जाएगा, 2 बंदे जाएंगे, टेंट सब रेंट पे लेके आएंगे. माय गॉड. बाकी के 3 जन जाके पूरा साइट प्रिपेयर करेंगे. देन द टेंट्स यूज्ड टू कम, देन वी यूज्ड टू पिच द टेंट्स आवरसेल्फ, पुट इन बेडिंग वेडिंग, खाना वाना बनाने का, रेडी करने का, ओके. गेट लॉजिस्टिक्स सॉर्टेड एंड देन बी रेडी व्हेन द गेस्ट्स कम इन. तो ऐसा मतलब हाँ. तो कुछ नहीं था, वो टेम्परेरी जाके लाते तो गेस्ट कहाँ से आते थे? So digital, we did a lot of Facebook. तभी 2016 में Facebook was Peak. Instagram इतना तभी नहीं चल रहा था. Facebook was in the peak. So हम लोग Facebook के ऊपर events list करते थे. ओके. And we had a good network because we five were very active in college. हाँ. तो नेटवर्क से काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ. एंड बैक बेंचिंग का फायदा हुआ ना. नहीं, और ये एक्चुअली में एक एग्जैक्टली बैक बेंचिंग का एक बेटर फायदा तो हो ही गया. हाँ. प्लस रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग बिकॉज तभी हम लोग को समझा देयर आर अदर पीपल ऑल्सो आर थिंकिंग सेम लाइक अस कि यार हम लोग क्या क्लब जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, घर जाके सो रहे हैं, नेक्स्ट डे हैंगओवर में उठ रहे हैं, वापस से रात को पार्टी करेंगे और संडे को टेंशन ले रहे हैं. सो दिस वाज नॉट ओनली विद अस फाइव बट इट वाज हैपनिंग विद एवरीवन एट दैट टाइम who have joined corporates, who have मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है जिनको. सो ये सब वेर गोइंग थ्रू दिस मोनोटोनस रूटीन. But in this young youth, when you started, 5 people, different stream of study, Right. different mindset. How did you guys manage and come into one platform? For this you will have to understand why did we go ahead with this. Yeah. So 2 of my friends, as I said, they discussed this. Then they started discussing. ऐसे हम लोग 2 के 3 जन ने बात किया, फिर तीसरे ने चौथे से बात किया. फाइनली we 5 sat down and we understood कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, माइंड में क्लैरिटी के साथ काम करना है. सो सबसे पहले हम लोग बैठे एंड बिकॉज वी वर एक्सपर्ट इन ईच अवर फील्ड, एक फाइनेंस देख रहा है, एक फूड देख रहा है, एक मार्केटिंग देख रहा है, एक लॉज और सब देख रहे हैं. सो हम लोग को 5-6 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका था तब तक कि हाउ डज द वर्ल्ड वर्क एंड हाउ डज दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वर्टिकल्स वर्क, इफेक्टिव कैसे करना है इसको. सो दैट इज़ व्हेन वी टुक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन आवर हेड्स कि ये मैं देख लूँगा, ये तुम देख लेंगे. ऐसा कुछ हमने बैठा, बातें किया एंड एक मीटिंग में वी डिसाइडेड दैट लेट्स डू इट. एंड दैट इज़ व्हेन वी ऑल्सो कनेक्टेड विद आवर कॉलेज सीनियर और उसने भी बोला कि हाँ कर लेना करके, इट्स ओके, यू टेक माई प्लेस. Wow. तो फिर आई गेस इट वाज अ कॉलिंग रादर देन टेलिंग, गिविंग इट, खुद को श्रेय देने से बेटर है कि वो टाइम ही वैसा हो गया था दैट वी थॉट दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू. एंड बॉयज बीइंग बॉयज वी डोंट ओवर थिंक ना, अपन सोच लिया तो कर लेते हैं, तो फिर देखेंगे क्या होता है. So always when you start a startup, you need money. How did you manage that money? ओह सो वी ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड. हम लोग 5 जन ने बूटस्ट्रैप किया. वी 5 कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 फ्रॉम आवर पॉकेट मनी. जो हम जॉब्स कर रहे थे 6-6 साल से, हम लोग ने उसमें से 20,000 रुपया पर पर्सन डाला, तो ₹1,00,000 का हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया. Corpus इकट्ठा फिर ₹1,00,000 में हम लोग ने से इन्वेस्ट किया. 5 करोड़ का revenue. दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड बिकॉज इनिशियली तो वीकेंड्स करने थे. सो इट वॉज गोइंग गुड एंड धीरे धीरे पीपल ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, शारिंग लव, तो निकल गया. Which was your first big property like this? Karjat is a very big property. So Full time, Monday to Sunday, yes. not Saturday to Sunday. No, Monday to Sunday. And which year? So 2018. 2018 we started full time. 17 end. December में we started full time. Okay. Where 365 days you can book, you can come to Moonstone Hammock and you can book.
You can stay, you can experience the whole activity, stay, bonfire, kayaking, movie night, live band, whatever you have, you want a break from. You come, and we always marketed it as it is not a military camp. आपको करना है तो करो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके घास के ऊपर लेटना है. Do it. It means do whatever you like. You feel like, yeah. And if you feel like doing something else, then we had options. Horse riding था, one of it was. Swimming Okay. pools थे हमारे पास. Okay. Kayaking है. So each of our property has a swimming pool. It has an outdoor spot. It has an experience built with it. So we don't just sell the rooms. We want to sell the whole experience to the person so that वो जब आए तो it can break the routine and put that refresh button. चलो. To be very frank, when I enter, I said okay, एक property है, कुछ नया concept है. I am feeling so relaxed, like we are capturing this in camera, but this camera is feeling and capturing the moment which cannot explain. The experience you give people, I can understand now. What was your other property? How did you manage? What was your second property, third, fourth? So 2018 we did full time. 17 end में we did full time Moonstone Hammock. Then we had our eyes on one more property. We started Pavna. Then we started Alibag. Alibag started just after COVID. 2020 में we my started. question was that हाँ. though during the COVID, what happened? So during COVID, we retained all our staff because we knew how difficult it is to get good people. We already had some work experience. We knew it is difficult to find people that you can trust and also are honest with you. So we wanted to retain a lot of people, so we did. The Alibag opening got a little delayed because of COVID, but that's fine, it worked in our favor. A lot of blood sweat went to putting up the Alibag site. तो वही चैलेंज हमको जानना है कि वो कोविड में क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कैरिंग स्टाफ पेइंग सैलरी हाउ डिड यू मैनेज व्हाट वाज योर चैलेंज दैट मूवमेंट हाउ डिड यू कम अप विद सोल्यूशन So we never took 1 rupee home. Or we 5 founders, we did not take 1 rupee home. Everything that we earned till that day, I'm not talking only about that year. From 2016 when we started, till that day, we did not take a single rupee home. We reinvested everything and we kept it in the company. So that we can sustain and we can get. So to be very honest, I know थोड़ा ऐसा oldie जैसा बात होएगा, but a lot of people get employment, उनका घर चलता है, किसी का बच्चे का स्कूल फीस जाता है, या किसी का एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ एक्टिविटी होता है, which people do come to us and tell us कि ऐसा ऐसा हुआ है. So it is very overwhelming. Apart from that, overwhelming के साथ साथ it also made us a realization that हाँ we are responsible for well-being of a lot of people, not only us. So that maturity आ गया थोड़ा जल्दी and we understood कि ऐसे लोगों को तो रखना ही चाहिए and that is why we never took a penny home. कोविड के टाइम पे ट्रैवल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. आपके पास अगर कुछ वो एसेंशियल का पास रहता तो यू कुड, अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट है ना. और सब डर भी गए थे, ऐसे नहीं कि जाना है और नहीं जा रहे हैं. काफ़ी लोग डरे हुए थे इंक्लूडिंग मी. तो दैट टाइम वी इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज, बट फिर हम लोग ने साइट पे ही सबको रहने के लिए बोला. ऑल आवर स्टाफ यूज्ड टू लिव एट द साइट, दे डिड नॉट गो होम, क्योंकि घर भी किसी का गांव में है तो किसी का औरंगाबाद टाउन में है, तो इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बस नहीं चल रही थी इंटर ट्रांसपोर्ट. सो दे स्टेड एट द कैंप साइट. दे वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस. ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने ही सैक्रिफाइस किया है, दे ऑल्सो हेल्प्ड अस, सपोर्टेड अस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, वेयर पीपल यूज्ड टू लुक एट देयर होम्स फर्स्ट और निकल जाते थे. दे स्टेड बैक. दे बोले कि हाँ चल हम लोग रुकते हैं पीछे, आपने कर रहे हो, तो दे ऑल्सो स्टेड बैक. क्योंकि घर पे पेरेंट्स बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ पे रहना इज ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क. Then post COVID you started Alibag property. या सो ड्यूरिंग कोविड थोड़ा काम वाम चालू था थोड़ा बहुत. पोस्ट कोविड वी फुल फ्लेज स्टार्टेड अलीबाग प्रॉपर्टी. द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग इन अलीबाग बिकॉज M2M भी चालू हो गया था तब तक. सो M2M चालू हो गया था. वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर अलीबाग एंड देन वी स्टार्टेड अ GP प्रॉपर्टी.
ओके इट्स इन हिमाचल. अभी जो इंफ्रा बन रहा है इन द नॉर्थ, हाँ उसमें जीबी इज गोइंग टू बी अ स्मॉल पार्ट वेयर रोड्स आर एक्सेसिबल होने वाला है. जीबी इज व्हाट 2 hours फ्रॉम मनाली, 2.5 hours फ्रॉम मनाली. उससे ओके Wow. ज़्यादा लंबा नहीं है हमारा. Beautiful place then. Beautiful place. It has got waterfalls. It has got a Jalori Pass. अच्छा हाइक है वहाँ से that can start. So तुम 5 बहुत दोस्त, amazing है. 5 प्रॉपर्टियाँ, 4 प्रॉपर्टियाँ, 5 प्रॉपर्टियाँ बना ली, बिजनेस खड़ा कर लिया. यंगस्टर, गर्लफ्रेंड कितनी थी उस टाइम में? So very nice question. Because- I'll be more than happy. हाँ, मेरे वाइफ और मेरे पांचों पार्टनर की वाइफ भी ये पॉडकास्ट देखते रहेंगे. And it is तो बाद में बोलेंगे ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. कैमरा बंद करने के बाद. This is my honest. I'm very happy that you brought this up. One of my partner's wife, they met at Moonstone Hammock. Wow. एक वो Good हुआ. story. सेकेंड वन ऑफ माई पार्टनर्स, सेकेंड पार्टनर, उसकी वाइफ को भी वो वाया मूनस्टोन मिला. एक कॉमन टॉपिक से ये इंटरेस्ट जागा. द गर्ल दैट आई वाज डेटिंग एट दैट टाइम, आई मैरिड द सेम गर्ल दैट यू सॉ माय वाइफ इज. सो आई वाज डेटिंग हर ओनली, आई गॉट मैरिड टू हर. आपका विचार कहीं सेकंड शादी.com खोलने का तो नहीं है? ना सो मूनस्टोन में लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे बोला ना सर, वी ओपनड अप, लाइक माइंडेड पीपल जॉइंड. तो गर्लफ्रेंड्स तो एज सच हम लोग 5 यही सब चीज़ में थे. मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहे थे, सैटरडे संडे मूनस्टोन के पीछे थे. सर मूनस्टोन में ही अबे सबकी लड़के शादियाँ जो- हो रही है, आपको पता चल गया. यहीं से सबकी शादियाँ हो रही है. सो गर्लफ्रेंड रखना, और ये तो इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. लोग जो इतना कुछ हाउ डिड यू, मतलब ये 5 दोस्त, एक 5 प्रॉपर्टी का एम्पायर खड़ा करने के बाद एक पैसा आपने नहीं लिया फैमिली से, पेरेंट्स से. नाउ व्हाट दे थिंक अबाउट यू गाइस? आई मीन दे आर प्राउड, आई नो दैट. Did any story, any saying from father? So probably I will not be the alone guy who will be telling this to you. This has happened to every one of us. Because you are representing all your 4 partners. Yeah, all 4 partners. I know everyone's family inside. They know mine, I know theirs. अभी हम लोग इतने साल से साथ में हैं. कॉलेज से साथ में थे और अभी धंधे में तो 10 साल हो गए. कॉलेज से ज़्यादा. हाँ. धंधे में. कॉलेज से हम लोग एक साथ में है 2000 and it's more than 25 years now. 20 years that we've been together. तो जैसे सभी के डैडी बोलते हैं, आई एम वेरी श्योर सबके डैडी बोले रहेंगे कि गुड. और फिर आके थोड़े इम्प्रूवमेंट के सलाह देंगे कि यार तू थोड़ा ऐसा करता तो और अच्छा चलता. दिस इज व्हाट एवरी फादर सेड. This is also compliment. हाँ, आई टेक दिस इन अ वेरी गुड लाइट. Yeah, this is also हाँ, compliment. उतना बोल दिया मतलब बहुत हो बहुत गया. बड़ी चीज है. मतलब अंदर कितना और होगा. आई होप, आई एम वेरी श्योर दे बी प्राउड. पर वो हमेशा पापा की प्राइड दूसरे के सामने खुलते हैं ना, हमारे सामने खुलते नहीं. तो पता है इसको थोड़ा आज 4 चीज बोल गया तो ये तो. ये प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है? दिस इज अराउंड 19 acres. 19 acres. हाँ हाँ. What things you are doing in this property? So apart from the stays that you saw, we do a nature's walk. Okay. Apart from nature's walk, we have activities, outdoor activities है. जैसे बर्मा ब्रिज है, महाराष्ट्र का सबसे लंबा बर्मा ब्रिज अपने पास है. Wow. We've got zip line which is more than 200 meters. Then we've got obstacle course. We've got kayaking. We also have rock climbing, rappelling. ये सब हो गए एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो मैंने कहना है. इसके अलावा वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स. जैसे अभी हम लोग ने टेरेनियम वर्कशॉप किया था. Wow. So the terrarium workshop, and people get to keep that terrarium and they can take it home. Dream catcher workshop किया है so that people can make. So we make sure कि when they come to Moonstone, they have something or the other to do. Not compulsory करना है, but again we flooded with a lot of artsy workshop, decor workshop, थोड़ा thought process वाला, open mics, karaoke nights. ये सब live वीकेंड्स में होता है. Every day. So weekends में we make sure to have a live band. ओके. Rest workshops भी we make sure कि हम लोग weekend को तो रखे ही. But whenever we've got more bookings, we just call them up and ask them कि we are planning to keep a workshop. Will you participate? ओके. And 99% of the people are always ready. या.
Let's do. What is the 5 thing you want to say to people, youth? Apart from 9 to 5 job, they should start the business. अभी यूथ में मैं यंग ही हूँ. आई कंसिडर माई सेल्फ बीइंग यूथ. Exactly. हाँ, हम लोग भी तो है ना. हाँ. हाँ, हम लोग भी हैं. we are just 40 youth, 40 plus. तो कलर नहीं किया. तो जैसे राहुल गांधी भी बोल देता है कि वो यूथ है, तो हम तो बोल सकते हैं. है ना, हम तो है ही ना. age is just a number. Is usually when people have the higher number they say this. So नहीं so coming back what you asked is ऐसा कोई पेडेस्टल पे तो हम है नहीं कि हम किसी को एडवाइस करें या कुछ दे. ये my आप belief सोचते हो, is- ये आप सोचते हो 0 से 5 करोड़ का बिजनेस बनाना, 1 लाख रुपए से 5 करोड़ का बिजनेस बनाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग सर. Right. नहीं so I would give that credit to everyone. Yeah, And yeah. I will also take responsibility कि हमने भी मेहनत तो किया ही है. Exactly. But everything worked in our favor. What I would suggest is just dive into it. If you have just graduated, if they are still young, आगे पूरा life बाकी है. This is what we also did. कि by chance चला तो चला, नहीं चला तो it's okay. We still have time. You will learn. हाँ, we learn, we become stronger, wiser, more mature. ये सब चीज़ होगा. But just deep dive. और ज़्यादा मत सोचो. Once you deep dive, you come out and you start it. Superficial काम मत करना. आपके hunch पे अगर आपको करना है कुछ, तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च कर लेना. Okay. But then do it. Don't think too much. Don't think too much. You are at that tender age कि you can bear the loss. Yeah, you- टाइम भी अभी बिगड़ेगा young तो चलेगा, पैसा भी बिगड़ा तो चलेगा, आगे जाके टाइम भी कमा लोगे, पैसा भी कमा लोगे. यू विल लिव डबल है. Correct. एंड यू लर्न डबल. तो इट्स ओके. थोड़ा लॉस करना इज नॉट अ इशू एट ऑल. आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल एज यू सेड को शॉर्टकट ढूंढना या श्योरिटी के बाद ही आगे कदम रखेंगे. दिस इज आई फील इज नाउ इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड इज व्हाट आई फील. People are just jumping into it, and it's good with a little research. Our country is full of youth. 60% youth है, Right. हाँ. and we are still developing country. Right. Absolutely. And हम आज वर्ल्ड में 4थे नंबर पे पहुँचे हैं, और शायद नेक्स्ट ईयर तक 3rd नंबर पे भी पहुँच जाए. Right. इस 60% यूथ में, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग मेक इन इंडिया स्टार्टअप के लिए, देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल दैट. Right. सो आप लोगों के पास तो 5 ब्रेन थे टू डिसाइड. एक फाइनेंस से था, एक लॉ से था एंड ऑल दैट. देर आर पीपल हु डज नॉट नो कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम निकाली. जैसे मैंने भी मेरी कंपनी चालू की थी, तो CGTMSC करके एक स्कीम थी जिसमें 2 करोड़ का लोन मिलता था विदाउट कोलेट्रल, विदाउट सिक्योरिटी. ये यूथ को नहीं पता है, Right. और वो जब पता चलता है जब आप काम करने लग जाते हो, लोगों से मिलते हो, और तब होता है. आपके सामने ऐसी कोई जर्नी आई जहाँ पे कैश क्रंच था, एंड उस कैश क्रंच में आइदर यू हैव टू गो टू द फादर, आस्क मनी, और हाउ डिड यू मैनेज? Yeah. So ये स्टोरी आई गेस एवरी बिजनेसमैन की होगी कि कैश क्रंच पूरे साल में 12 महीने अच्छे जाते हो तो इम्पॉसिबल है. करेक्ट. और अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को भी बताओ कौन से धंधे में हो. तो हाँ, ऐसी पोजीशन आई है. फॉर्चुनेटली हम लोग ने अभी तक टिल डेट फैमिली के तरफ हम लोग बहुत कम गए हैं. और फैमिली से अगर कभी कुछ कैश क्रंच हुआ है तो जो भी पैसा हमने मांगा है वो हम लोग ने विथ इंटरेस्ट रिटर्न किया है. बिकॉज द कंपनी हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू अ कंपनी. वाह. It cannot work according to our will. So company will always see the company's benefit first, and we 5 founders, the site managers, stalwarts, everyone in the company will be looked at from the company's perspective, जो company को सही लगे. So we 5 are also at the disposal of company's benefit. तो वो हमने एकदम strict रखा है. And हाँ, बस यही हुआ है कि जब भी अगर ज़रूरत पड़ा है, जिस ये 10 साल में हुआ है, 2-3 बार हम वी हैव गॉन टू क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली
क्योंकि वो 12 महीने सही नहीं चलता. देर आर सीजन टाइम्स, देर आर नॉन सीजन टाइम्स. तो कभी कभी थोड़ा शॉर्ट कमिंग्स होता है तो इट गेट्स रिप्लेनिश्ड एंड देन वी पे इट ऑफ. घूम के आएंगे जरा. Yeah, yeah. टेक अस टू योर प्रॉपर्टी yes, प्लीज. yes, please. Yeah.